Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, decimals. We all are familiar with fraction like 1 by 2, 3 by 4, 2 by 3, 7 by etc. Here we will learn about decimal fractions. The fractions in which the denominator are 10, 100, 1000 etc. are called decimal fractions. For example, all these are decimal fraction. हमने लास्ट चैप्टर में fractions के बारे में पढ़ा है, अब हम decimal fractions के बारे में बात करेंगे. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं 10th. When one whole is divided into 10 equal parts and one part is shaded, then it is 1 by 10 of the whole. In decimal form, 1/10 is written as 0.1 and read as 0.1. 10th मतलब का 1/10 है आपका 10 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को शेड किया गया है. दिस इज 1 by 10 और इसको डेसिमल में हम लिखते हैं 0.1 और इसको रीड कैसे करते हैं 0.1. नेक्स्ट इज सिमिलरली इफ वी टेक 3 पार्ट्स, 5 पार्ट्स और 9 पार्ट्स शेडेड, देन 3/10 इज इक्वल्स टू 3 by 10 और 0.3. 5 by 10 is equals to 5/10 or 0.5 and 9 by 10 is 9/10 or 0.100. When one whole is divided into 100 equal parts and one part is shaded, then it is 1 by 100 of the whole. In decimal form, 100 is written as 0.01 and read as 0.01. Similarly, if we take 3 parts, 6 parts or 9 parts shaded, then 3 by 100 is equals to 300 is equals to 0.03. 6 by 100 is equals to 600 is equals to 0.06 and 9 by 100 is equals to 900 is equals to 0.09. देखिए 100 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट ले लिया गया है तो 1 by 100 एंड इसको डेसिमल में लिखते हैं 0.01. ओके चिल्ड्रन, नाउ thousands. When one whole is divided into 100 equal parts and one part is shaded, then it is 1 by 100 of the whole. In decimal form, 1000 is written as 0.001 and read as 0.001. Similarly, 1000 में भी आपका ऐसी है कि 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक पार्ट शेडेड है तो वो आपका हो जाएगा 1 by 1000 और उसे हम डेसिमल में लिखेंगे 0.001. एग्जाम्पल 1 देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. आपको इन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. 7 by 10 इज 0.7. 9 by 100 इज 0.09. Okay. Reading a decimal. A decimal has two parts separated by a decimal point, that is whole number part, decimal part. Whole number part, the digits which are to the left side of a decimal point are called whole number part. Decimal part, the digits which are to the right side of a decimal point are called decimal part. देखिए कैसे आपको डेसिमल को रीड करना है. देखिए आपका एक जैसे डेसिमल होता है, जैसे आपके पास ये डेसिमल है, जो लेफ्ट साइड है वो आपका होल नंबर पार्ट है एंड जो राइट साइड है दैट इज डेसिमल पार्ट. व्हाइल रीडिंग अ डेसिमल, the whole number part is read as whole number and the decimal part is read as individual digits. Therefore, this can be read as 368.215. देखिए आपका जो होल पार्ट होता है उसे आप एज इट इज रीड करेंगे और जो आपका डेसिमल पार्ट होता है ना उसे आप इंडिविजुअल डिजिट के तौर पे रीड करेंगे. जैसे 215, इसको 215 नहीं पढ़ना है. ओके, आप इसे पढ़ेंगे 215. Writing decimals in place value chart. We have studied place value chart and know that in a place value chart, when we move from right to left, its place value becomes 10 times, and when we move from left to right, its place value becomes 1/10 times as shown below. देखिए जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी 10 टाइम्स एंड जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी 1 by 10. ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. देखिए 12.6, 48.33. आप इस तरह से लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000. देन डेसिमल के बाद का आपका पार्ट होता है 1/10 और 100th, 1000th, TH उसमें ऐड हो जाएगा और आप इस तरह से इनको इस टेबल में रखेंगे. Expanded form. In the expanded form, we add the place value of each digit forming the number. Example, write the place value of each digit of this, also write it in the expanded form. देखिए सबसे पहले आप इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे. ओके, और इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे देखिए 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5. अब देखिए डेसिमल पार्ट शुरू हो गया है. 1 by 10 प्लस 6 by 100 प्लस 9 by 1000.
Okay, representation of decimals on the number line. We have represented fractions on the number line. Similarly, we can represent decimals on the number line. Suppose we have to represent 0.6 on the number line. It is clear that 0.6 is greater than 0 but less than 1. So it lies between 0 and 1. We can represent it as follows. देखिए, जैसे आपने फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, हम डेसिमल को भी कर सकते हैं. जैसे आपके पास है 0.6. अब क्लियरली ये शो हो रहा है कि 0.6 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा है बट इट इज़ लेस देन 1. So what are the steps? Draw a number line and represent 0 and 1. Divide the gap between 0 to 1 into 10 equal parts. Take 6 parts from 0. The 6th part will represent 0.6 or 6 by 10. चलिए देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे हम आपको रिप्रेजेंट करना है 0.6. You have to represent 0.6. सबसे पहले आप 0 and 1 लेंगे and इसके 10 equal parts करेंगे because this is 6 by 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. So 6 parts 0 से count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 0.6 और 6 by 10. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Write each of the following as decimals. 6/10 होता है आपका 6 by 10 यानी कि 0.6. 21/100 यानी कि 21 by 100 or is equals to 0.21. Question number 2, write each of the following in words. Words में आपको लिखना है 12.7, 45.68. Question number 3, express the following decimals as fraction with denominator 10, 100 or 1000. Okay, अब आपको fraction में लिखना है, उनके denominator होंगे whether 10 or 100 or 1000. जैसे 0.2 है, 0.2 को आप लिखेंगे 0.2 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10. नेक्स्ट इज 0.033 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100. Like, unlike and equivalent decimals. Like decimals, decimals having the same number of decimal places are called like decimals. For example, देखिए जिनमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं लाइक डेसिमल्स. जैसे कि ये देखिए डेसिमल के बाद सबके 2 प्लेसेस हैं. Unlike decimals, decimals having different number of decimal places are called unlike decimals. For example, देखिए आपके इसमें क्या है, इनके जो डेसिमल के बाद डिफरेंट प्लेसेस हैं, है ना. जैसे इसमें 1 है, then 2, then 3, तो ये आपके unlike decimals हैं. Equivalent decimals are those unlike decimals which have same value. Equivalent decimals आपके वो unlike decimals होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है. For example, 0.8, 0.80, 0.800 are unlike decimals but have same value. Therefore, these are equivalent decimals. Conversion of unlike decimals into like decimals. Unlike decimal को like decimal में convert करना है. Unlike decimals can be converted into like decimals by adding zeros at the extreme right of the decimal part of unlike decimals. For example, if we are to convert 2.7, 3.86 and 9.301 into like decimals. देखिए आपके पास ये 3 डेसिमल्स नंबर दिए गए हैं 2.7, 3.86 एंड 9.301. सबसे पहले आप देखिए ये अनलाइक डेसिमल्स है, आपको इन्हें कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में. तो कैसे करेंगे? सिंस द मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस इन अनलाइक डेसिमल्स इज 3, हैंस वी हैव converted each of the 3 unlike decimals into like decimals with 3 decimal places. देखिए decimal places maximum 3 हैं, इसको 3 करने के लिए एक 0 लगाएंगे एंड यहाँ पे आपके 2 zeros लग जाएंगे. Okay, remember that zeros added to convert unlike decimals into like decimals have no value. जो 0 हम unlike decimals में ऐड करते हैं ना like करने के लिए, like बनाने के लिए, एक्चुअल में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है. Comparison of decimals. For comparing the decimals, we follow the given steps. First of all, convert unlike decimals into like decimals. Compare the whole number parts. The decimal with greater whole number part is greater. If the whole number parts are equal, then compare the 10th digits. The decimal with greater digit at the 10th place is greater. If the 10th digits are also equal, then compare the 100th digit and so on. तो कैसे कंपेयर करेंगे हम डेसिमल्स को? ये जितने भी स्टेप्स हैं चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए आपके पास दिया है विच वन इज ग्रेटर 12.36 और 12.348. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? अनलाइक डेसिमल से लाइक में कन्वर्ट करने के लिए 0 इसमें ऐड ऑन कर देंगे. ओके, अब आप होल पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ये तो इक्वल हो गया. नेक्स्ट इज अब आप 10th पार्ट पे आएंगे तो ये
3 है, ये भी 3 है। नेक्स्ट आप देखेंगे 100th प्लेस को, ये 6 है एंड ये 4 है, तो ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर, यानी कि आपका ये जो नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज conversion of a decimal into a fraction. For converting a decimal into a fraction, given steps are followed. Step 1, write the given number as the numerator of the fraction and 1 as denominator. Remove the decimal and place as many zeros after 1 in the denominator as the number of digits after decimal. Reduce the fraction into lowest form and if required change it into mixed fraction. अच्छा, decimal को हम fraction में कैसे convert करेंगे देखते हैं। So we have a decimal 14.25। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को एज इट इज लिखें डेसिमल के साथ और डिनोमिनेटर पे 1 लगाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। एक्चुअली डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये 1 के साथ आपके 2 जीरोस आ जाएंगे और इसके बाद आप इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद अगर ये इम्प्रॉपर में आता है तो आप इसे मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। Conversion of a fraction into a decimal. There are 2 methods to convert the fraction into a decimal. देखिए, conversion by changing denominator with 10, 100 or 1000 etc. Fraction को convert करना है decimal में. In this method we follow the given steps. First, change the given fraction into an equivalent fraction with denominator 10, 100 or 1000 as required. Now change the equivalent fraction into decimal as we have learned earlier. चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ओके आपने इसे जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये 11/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना होगा इधर 10 और 100 और 1000। ओके, तो 2 को 10 में कन्वर्ट करना इजी है, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 11 को भी 5 से, तो आपका आ जाएगा 55/10। ओके, अब 55/10 आया तो आप क्या करेंगे, नीचे आपके एक जीरो है तो आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। मेथड 2, कन्वर्जन बाय लॉन्ग डिविजन मेथड और एक्चुअल डिविजन मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि डिविजन मेथड का हम यूज करें या फिर एक्चुअल डिविजन मेथड, लॉन्ग डिविजन और एक्चुअल डिविजन मेथड। इन दिस मेथड वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर till a non-zero remainder is obtained. Now place a decimal point in the dividend as well as in quotient. Put a 0 on the right of the decimal point in the dividend as well as on the right of remainder. If we again obtain a non-zero remainder, then repeat step 3 until we get 0 as remainder. चलिए इसे हम समझते हैं आपका जो लॉन्ग डिविजन मेथड है एग्जाम्पल के थ्रू। सो आपके पास एक फ्रैक्शन है राइट और आपने इसको 12/3/5 आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में 63/5। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे चलिए देखते हैं। You have to divide 63/5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3। अब देखिए 3 के बाद आपके पास नेक्स्ट कोई भी डिजिट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और जैसे ही आपने डेसिमल लगाया यू कैन ऐड 0 हियर। ओके, नाउ डिवाइड। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब आपका डेसिमल में कितना आएगा 12.6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिमेंबर दैट इफ डिविडेंड is less than the divisor then whole number part in the quotient is always 0। अगर डिविडेंड आपका डिवाइजर से छोटा है तो जो होल नंबर पार्ट होगा क्वोशिएंट में वो हमेशा 0 होगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास है 1.2। ओके, आप इसे एज इट इज लिखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10। अब आप इसे 2 से कट कर सकते हैं, 2 6 2 5 सो 65/5 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज 0.25, आप इसे लिखेंगे 25। पॉइंट के बाद आपके पास है 2 डिजिट सो योर यू विल ऐड 2 zeros। अब आप इसे कट कर सकते हैं 25 से, 25 1s are 25 4s are, सो द आंसर इज 1/4। ओके, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपको कंपेयर करना है, यू कैन इजीली कंपेयर राइट। देखिए
4.3 और 0.43, आप होल पार्ट को देखेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर. Question number 3, convert the following fraction into decimals by changing denominator into 10 or multiples of 10. आपके पास है 1/2. 1/2 कैसे करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 5 से. So 5/10 and the decimal is 0.5. Okay. Next is 9/4. Okay. अब 4 की टेबल में आपका 10 तो नहीं आता है, 100 आता है, of course आता है. इसे आप 100 में कन्वर्ट करेंगे by multiplying by 25. इसे भी आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके ये तो आपके आ गया 100. अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22. सो 2 2 5 आप लिखेंगे एंड आपके पास क्योंकि 2 0 है नीचे तो अब 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा. ओके बाकी की एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे. Conversion of units. For converting smaller units into bigger units, we divide the smaller units by the number of smaller units present in one bigger unit. Similarly, for converting bigger units into smaller units, we multiply the bigger units by the number of bigger unit present in one smaller unit. अब यूनिट को कन्वर्ट करना है बिगर से स्मॉलर में एंड स्मॉलर से बिगर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करिए. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपके पास कन्वर्ट 35 पैसे इंटू रुपीज़. 35 पैसे को आपको चेंज करना है रुपीज़ में. आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट, और 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी. सो 35 पैसे में आपके कितने हो जाएंगे? 35 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.35 रुपी. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर. आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले आपके पास 60 मीटर. 60 मीटर. देखिए आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, यानी कि स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है. देन यू हैव टू डिवाइड. सो यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. सो 60 मीटर इज इक्वल्स टू 60/1000 किलोमीटर. अब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.060 किलोमीटर. ओके नेक्स्ट इज 500 मीटर. अगेन सेम. 500 मीटर को आप डिवाइड कर देंगे 10,000 से. ओके आप चाहे तो इसे कट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर, या फिर अगर आप नहीं भी कट करना है तो आप इसे लिखेंगे 0.500 किलोमीटर. बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़. आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है 4 पैसे को. ओके अभी आपको मैंने बताया था दैट 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी. ओके सो आपके 4 पैसे में हो जाएंगे 4/100 और 0.05 रुपी. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम है, मतलब आपको कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट को बिगर में. आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. सो रिमेंबर 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. तो 24 मिलीमीटर को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 2.4 सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. एडिशन ऑफ डेसिमल्स. फॉर एडिंग डेसिमल्स फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. इफ दे आर not, then write them in such a way that the decimal points of all the decimals are in vertical line, that is the decimal points are one below the other, and then the usual addition is done. देखिए एडिशन आपका डेसिमल का ऐसे ही होता है जैसे आप करते हैं नॉर्मल एडिशन. बस ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे अगर कोई अनलाइक डेसिमल है तो उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, और अगर नहीं भी करना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल. जैसे आपके पास ये नंबर्स हैं, देखिए ऐड करना है 72.53 5.378. देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसको आप लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे 0 ऐड करके. इसके बाद नेक्स्ट है आपके 251. रिमेंबर दैट 251 देयर इज नो डेसिमल, तो अब वो डेसिमल से पहले का पार्ट है 152, और डेसिमल के बाद आप ऐड ऑन करेंगे 000. इसी तरह से नेक्स्ट इज 0.36 एंड एक 0 ऐड कर देंगे. देन आप इसे प्लस करेंगे.
जैसे हम नॉर्मल प्लस करते हैं। Subtraction of decimals. For subtracting decimals, first we convert the given decimals into like decimals. If they are not, then write a smaller number under larger numbers in such a way that the decimal points of both decimals are in vertical line, and then the usual subtraction is done. जैसे आपका usual subtraction होता है ऐसे ही करना है। देखिए चलिए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। आपको माइनस करना है इस नंबर में से, यानी 35.3054 एंड माइनस करना है 26.276 और यहाँ पे आप ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप जैसे आपका यूजुअल सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे ही करेंगे आप। ओके चलिए अब आप देखते हैं एक्सरसाइज। ऐड द फॉलोइंग, आपको प्लस करना है। ओके चलिए ऐड करते हैं। आपके पास है 4.6, इसके साथ आपको ऐड करना है 24.8। रिमेंबर दैट डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। देन 35 में देयर इज नो डेसिमल, सो 35.0। नेक्स्ट इज 7.9। नाउ ऐड, जैसे हम यूजुअली ऐड करते हैं ऐसे ही आपको ऐड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट है आपका 0.6 एंड 106.94। सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट पार्ट यानी कि डेसिमल पार्ट एंड 106। इसके बाद आपको इसमें प्लस करना है 68.9 देन 29.5। ओके देन आप इसे ऐड करेंगे, आप इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद आप इसे प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज आपको क्या करना है, इस पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है 4.9 फ्रॉम, चलिए तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, आपको 9.892 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4.59 और यहाँ पे आप जीरो प्लेस कर देंगे एंड देन एज यूजुअल जैसे आप यूजुअल माइनस करते हैं ऐसे ही आपको करना है। सेकेंड इज 92.4 में से आपको माइनस करना है 51.63। ओके अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे 4 इसके साथ कुछ और नहीं है, लाइक में कन्वर्ट करेंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे। अब आपका माइनस कैसे होगा, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, कैरी। ओके आपका 3 आया, देन 13 माइनस 6 इज 7, 1 माइनस 1 0, 40.77। Overview. Fractions with denominators 10, 100 and 1000 are known as decimal fractions. जिन fractions के denominator 10, 100, 1000 होते हैं वो decimal fractions होते हैं। A decimal has two parts, whole number part and decimal part separated by decimal point. हर decimal के 2 points होते हैं, ये बीच में होता है आपका decimal, decimal के जो left side होता है that is whole part, and decimal के जो बाद होता है that is decimal part. Decimals having the same number of decimal places are called like decimals, otherwise they are called unlike decimals. जिन decimals में same number of decimal places होते हैं वो like decimals होते हैं, otherwise वो unlike होते हैं। For converting unlike decimals into like decimals, add zeros at the extreme right of the decimal part of unlike decimals. Unlike decimals को like decimal में convert करने के लिए extreme right में zeros add किए जाते हैं। Any two decimals can be compared by comparing the whole numbers part. If the whole number parts are equal, then we compare the 10th digits, and if the 10th digits are also equal, then we compare the 100th digits and so on. कभी भी हम दो डेसिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसका पहले होल पार्ट देखते हैं, अगर वो सेम है देन हम 10th डिजिट को कंपेयर करेंगे, वो भी सेम है देन हम 100 डिजिट को कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन। For adding and subtracting decimals, first of all, they are converted into like decimals. कभी भी आप decimals को add या subtract कर रहे हैं, सबसे पहले उसे like decimal में convert किया जाता है। चलिए, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।